among certain number of persons, rupees 6500 equally distributed. A word problem on quadratic equation. 6500 rupees were distributed among some number of persons. If there had been 15 more persons, if there had been there had been 15 more persons, if there had been 15 more persons, each would have got rupees 30 less. Each would have got rupees 30 less. See here, rupees 6500 equally distributed among certain number of persons, and if there had been 15 more persons, each would have got rupees 30 less. 15 more persons. If 15 more persons are there, 6500 equally distributed among some number of persons. We don't know the number of person. It is asked, what is the number of original number of person? It is our question. What is the original number of persons? We have the four options: 50, 50 number of persons, 60, next 45, and the last one is 55. What is the number of person? It is our question. The question is given in very short way. 6500 were distributed. The amount is rupees 6500. 6500. It is distributed among some number of persons, whether these are 50%, 60%, 45 or 55 persons. 6500 को distribute करना है some any one of the number of persons. But if 15 ज्यादा पर्सन है, इसमें 15 ऐड करो, इसमें 15 ऐड करो, इसमें 15 ऐड करो, तो अभी हर एक को 30 रुपीज लेस मिलने वाले हैं, लेस. सो कौन सा वैल्यू आपको आंसर देगा? सिंपल है. 50 लोगों को 6500 अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर एक को मिलेगा 6500 अपॉन 50 कैंसल्स, 10 कैंसल्स, 5 13 जार 130. अगर इसमें 15 ऐड किए तो हो जाएगी 75. 6500 अपॉन 15 ऐड किए तो 65. इसमें if 15 more persons are added, let us check how much amount will we each get. 15, 65, 65 ones are 100, and now they were getting 130 each, now they are getting 100, means they are getting 30 less. So option is A is our answer. A is probably our answer. Not probably, certainly A is answer. So our answer is A. Yes. So not necessary to find the second, what is our answer actual method. We can verify the answers. 50 was substituted. What happens if other numbers were substituted? Luckily 50 was our first option. If we substitute 60, 6500 were distributed to 60 students, and when 15 more are there,
6500 were distributed to 75 students. Now each will get, find whether the difference is 30 or not. Again, see here, very simple question. There were 6500 rupees, rupees 650 were distributed among some persons. ₹6500 were distributed among some persons. If 15 more persons are there, means the condition is going to change. पहले कुछ persons को distribute करना है. अगर 15 लोग ज्यादा है तो हर एक को 30 रुपीस कम मिलते हैं, लेस रुपीस. तो how many original number of persons were there? सो पहले कितने पर्सन थे? तो समझो पहले 50 पर्सन थे, ऑप्शन ए. तो 50 पर्सन को एक एक को कितने रुपीस मिल जाएंगे? तो 6500 upon 50 that each will get, and this value comes to be what? So one many to 130. now अब हमारी कंडीशन क्या कहती है? 15 persons were more. 15 means was 15 plus 15, 50 plus 15, that is 65 divided to 15 is added to 50. These are the number of persons. Now if 4 more 15 persons are there, then each will get what? 100 rupees. Yes, and this value is 30 less than this value, 130, and it is given in the condition each would get rupees 30 less. Yes, each of them is getting rupees 30 less. पहले 130 मिले रहे हर एक को, और दूसरे में हर एक को मिल रहे 100 rupees. Okay, so our answer is 50. Not necessary to verify the other answer. बट हम बोल रहे थे कि ये दूसरे आंसर को कैसे वेरीफाई? चेक करो, 6500 डिवाइडेड बाय 60 का वैल्यू निकालो, 6500 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 15 यानी 75 का वैल्यू निकालो. दोनों का डिफरेंस अगर 30 तो आपका आंसर सही. 45 है. 6500 डिवाइडेड बाय 45 इंटीग्रल आंसर आना चाहिए. उसमें 15 ऐड करने के बाद 60 डिवाइडेड टू 6500, देख लो दोनों का आंसर आपका 30. ये बाकी सब ऑप्शन काम के नहीं है. ऑप्शन ए इज आवर आंसर. लकीली हमें आंसर मिलता है. बट व्हाट इज इट्स एक्चुअल प्रोसेस? एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस ऐसी है क्वाड्रेटिक की कि देयर वेर एक्स पर्सन्स, समझो पहले कंडीशन में. तो दूसरे कंडीशन में कितने हो गए? x प्लस 15. तो पहले कंडीशन में हर एक को कितने मिलेंगे? 6500 अपॉन x रुपीज. और दूसरे कंडीशन में हर एक को कितने रुपीज मिलेंगे? 6500 अपॉन x प्लस 15. अब ये जो वैल्यू है इससे 30 लेस है. हर एक को 30 लेस, ये वैल्यू जो है इससे 30 लेस है. ये वैल्यू 30 से मोर है, ये वैल्यू 30 से लेस है. मतलब greater minus smaller will be 30. One of the way of finding the equation. So we got 6500 upon x minus 6500 upon x plus 15 equals to 30. अब आपको यह इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो आप वेरिफिकेशन मेथड नहीं बोल रहे, क्वाड्रेटिक का अगर हमको सॉल्व करना है. कभी भी क्वाड्रेटिक में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है. यस, द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो हमारा प्रॉब्लम अलग तरह से बन गया. द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6500 अपॉन x माइनस वही नंबर अपॉन x प्लस 15 equals to 30. How we solve it? Very simple. First take common 6500. At the same time, divided by 30, it will be what? 1 upon x minus 1 upon x plus 15 is 1. Important step. Minimum number of steps.
6500 अपॉन x, 6500 कॉमन अपॉन 30 वहां से इधर आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें सॉल्व करना है। हाउ वी सॉल्व इट? इट इज वेरी सिंपल। एक जीरो जाएगा 650 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट, ये क्रॉस हो जाएगा x प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 1। इसमें 50 रह जाते हैं, 650 अपॉन 3 इंटू 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 1। अब हमें 15 और 3 1 जार 3 5 जार 15, 3 1 जार 3 5 जार 15, तो 5 इंटू 650, 650 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? वी विल राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन न्यू फॉर्मेट। अरे ये जो 30 था ये पूरा इधर आ गया तो 1/30 हुआ, लिखते समय 1/30 डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर से 6500 कॉमन लिया है, ऐसा है, इसको बोलते डिवाइडेड बाय 30। ये पहली स्टेप थी। अब हम जाएंगे हमारी लास्ट स्टेप में, 650 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। लेट मी राइट इन क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 650 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इंटू 50, ये जीरो इधर दे दो 50 हो जाएगा, ये मतलब 10 है, और ये 65 और 50 का डिफरेंस 10 है। तो फैक्टर्स मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x प्लस 15, x प्लस 65 इन वन ब्रैकेट, x माइनस 15 अनदर ब्रैकेट। और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बताता है, इसका जो आंसर है वो है 50, सो 50 इज आवर आंसर। So that our answer is 50. Yes. 30 इसलिए आया था कि हमने पहले बार बताया 30। ये जो 30 है दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो इधर आया, 6500 पहले से कॉमन था, डिवीजन इधर लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो सेम है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं। लास्ट स्टेप, पहले स्टेप समझ लो फिर से। ये 6500 कॉमन, ये 30 इधर था तो इधर आया तो 1/30 हुआ, ऐसे लिख दिया। ये 1/x माइनस 1/x प्लस 15। नाउ ये क्रॉस हो जाएगा x ऐसा, माइनस x हुआ, x प्लस 15 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 1 तो है, इधर है 650 अपॉन 3, और इसके आगे हम जब जाएंगे, सो वेरी सिंपल थिंग इज देयर आफ्टर दैट व्हाट यू हैव। अभी ये जो है 650 अपॉन 3 multiplied by 15 divided by x square plus 15x equals to 1। इसमें ये 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 आ गए, तो 5 इंटू 650, 650 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x राइट साइड चला जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 15x। मैं इसको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ये टर्म राइट साइड में गई तो माइनस, बट लिखते समय लेफ्ट साइड में लिखा है, 650 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर न्यू फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे बहुत ही सिंपल स्टेप है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अगर हम इसको समझे, ये है 65 इंटू 10, 65 इंटू 10, तो वो 10 हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 65 इंटू 50, 10 इसको दिया, तो 650 into 5 same as 65 into 50. Now these are themselves the factors of the factors which are required for finding the quadratic equations factor. So you will have x plus 65 into x minus 50. X is minus 65, x is plus 50.
minus 65 will not accepted, x will be 50. That's my work is over. Now we have to solve such a type of quadratic equations. In such a type of quadratic equation, a larger value is always taken common. If there is a larger value, it should be taken common. Now I have another word problem. Before this word problem, if you have a quadratic equation, then the value of very interesting quadratic equation, application of quadratic equation, the value of 2 plus here 1 upon, ये थोड़ा सा हायर लेवल है बट कुछ क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है, 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, यही प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं, 2 प्लस 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 इंफिनिटी, ये ऐसा ही 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ये ऐसा आगे जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। इसमें क्या करना है, ये इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, मालूम नहीं क्या है, बट 2 प्लस समथिंग है, मतलब ये वैल्यू जो है 2 प्लस समथिंग जो है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू है, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, 2 प्लस समथिंग आंसर आएगा। तो क्या करो, ये 2 प्लस सिंपल है, ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो को एक्स बोलिए, इसको एक्स समझिए, तो ये 2 उधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस इंफिनिटी इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये 2 उधर गया। अब आगे क्या करना है, अभी इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लिया तो न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एंड इंफिनिटी विल बी x माइनस 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x माइनस। और आपको सबको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू फिर से x जैसे आती है, ये इंफिनिटी का मतलब ये इसके जैसे वैल्यू आती है जिसको हमने x बोला था। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू x, ये x जैसा आता है, उसको 2 प्लस करते जाइए, उसी फॉर्मेट में लिखो, तो ये हो जाएगा x। सो हमें मिल गया है x इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, वी ऑब्टेन x इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, हमारा इक्वेशन मिल गया 1 अपॉन x माइनस 2 is x, and it is our duty to solve this equation. X square minus 2x equals to 1. So x square minus 2x minus 1 equals to 0. Now what are the roots of this quadratic equation? फिर से देखिए, कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग में भी दे सकते थे। ये देखो, इसकी वैल्यू हमको पूछी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, तो 2 प्लस में क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ये ऐसा होते जाएगा up to what ever it may be, it is new to you. So इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, you have to find the value of this type of value, ऐसे वैल्यू, ये 2 प्लस समथिंग है, तो समझने वाली बात है, पहली बार देख रहे हैं। 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब हमारा प्रॉब्लम इस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, find the factors of this equation, means solve this quadratic equation by factorization method. X square minus 2x is 1 is solved by any one of the method, completing square or formula method. X square minus 2x minus 1 is 0. Now we have the value of a is a 1, value of b is a minus 2, value of c is a minus 1. Now this type of equation is called
quadratic equations reducible to the quadratic form. Equations reducible to quadratic form. What is value of b square minus 4ac? B square is 4 minus 2 square is 4. Minus minus plus 1 plus 4, that is 8. So your quadratic equation will be minus b plus or minus root of b square minus, what is b, minus 2 minus minus plus 2, plus or minus square root of b square minus 4ac is 8 upon 2 into 1 is 2. And it will be 2 plus or minus root 8 is nothing but 2 root 2 upon 2. Dividing by 2, it will be what? Dividing by 2, it will be what? अगर हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा. It depends on our calculation. कैलकुलेशन अगर गलत है तो सब गलत हो जाएगा. So 2 is divided throughout, 4 2s are 8. It will be what? 1 plus root 2. अगर quadratic equation सही है तो, if we have this as a quadratic equation. नहीं, प्रॉब्लम फिर से देखो, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद प्रॉब्लम में. सर ये वीडियो था सर कल. हाँ इसमें पहला डिलीट करो, ये यहाँ से शुरुआत करो. हमारा प्रॉब्लम है 2 प्लस, प्रॉब्लम को देखा नहीं, होता है कभी कभी. 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 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 इंफिनिटी. इसकी वैल्यू हमको पूछिए. द क्वेश्चन इज आस्क्ड. हम थोड़ा सा एक मिस्टेक कर बैठे. होता है, देखो हमसे भी होती है तो आपसे भी, कौन से भी भूल हो सकती है. सो प्रोसेस यही है कैलकुलेशन में, प्रोसेस यही है कैलकुलेशन में. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तो होता क्या है. मेरे सामने सिर्फ क्वेश्चन रहते. सो यार हमको इसी को x बोलना है ना. तो x कैसा है? 2 प्लस समथिंग x है, ये हम भूल गए थे. तो ये 2 उधर गया तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सो इज x माइनस 2. अभी हमें क्या दिया है कि 2 प्लस समथिंग इज x, ये सिमिलैरिटी है. ये ऐसा हमको बनाना है. इधर x का वैल्यू होता है 2 प्लस समथिंग, तो इसको रेसिप्रोकल में लीजिए, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, राइट साइड होगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस, रेसिप्रोकल उल्टा किया तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन. मतलब 2 प्लस समथिंग, इट इज सिमिलर टू दिस 2 प्लस समथिंग, सेम क्वांटिटी. इंफिनिटी का मतलब इट इज infinitely the same thing is added and 1 upon this and this is going to. So this quantity now becomes x 2 plus, ये 2 है इधर, इसमें देख लो 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 and infinity. इसका रेसिप्रोकल हमने लिया है 2 plus. So that is, ये हुआ x, x will be 1 upon x minus 1. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम था, आंसर सही है. आंसर वही है जो हमने लिया था, वो सेम आंसर इज देयर. आंसर में कोई बदलाव नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं था पहले प्रॉब्लम में इस जगह का, डायरेक्ट बताया हमने. सो हियर दिस, अब ये x है, ये जो है x will be 1 upon x minus 2 and proceed further as it is. x will be, देखो इसका रेसिप्रोकल हुआ x और ये हो जाएगा 1 upon x minus 2. So we obtain x is 1 upon x minus 2. आगे का काम आपका है, फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो. 2 रूट्स आ जाएंगे,
बट ये वैल्यू 2 प्लस समथिंग है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है और 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो जो आंसर, नहीं -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। जो आंसर आपका -1 नहीं, +1 है। जो आंसर आपका 1 प्लस समथिंग 2 प्लस समथिंग वैल्यू है, तो ये वैल्यू 2 प्लस समथिंग है। अगर ये वैल्यू 2 से कम आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है बस। तो 1 प्लस √2 आंसर हो सकता है। जय, यू आर राइट, 1 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट। फिर से कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम से भी अलग प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा लिया था हमने, ये कोई आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक थोड़ा सा कुछ क्वाड्रेटिक भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। नाउ आई हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, roots of the equation, not a quadratic but a equation. Roots of equation x raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3 minus 2 equals to 0. See the equation. All of you familiar with the 2 by 3 form, 1 by 3 form of variable. X raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3 minus 2 equals to 0. Then what are its solution? I have the solutions. 1 minus 8, option B. 1 minus 2, option C. 2 by 3 comma 1 by 3. I don't know the answer. Do you know it? Try to find. X raised to 2 by 3 plus x raised to 1 by 3 minus 2, 0. बी चेक करेंगे, ठीक है। रविश, रविश ने बी बताया है। 1 तो उसका आंसर है, 1 तो आंसर है। -8 का क्यूब रूट -2, उसका स्क्वायर 4, 4 minus 2, हाँ 1 ऑप्शन ऑप्शन चेक किए, 1 -2 बराबर है, बट 1 -8 चेक करेंगे, देखो वाट एवर में बी द आंसर। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर जाएंगे। x रेस टू 2 by 3, क्यों ना हम ऐसे करेंगे, x स्क्वायर रेस टू 1 by 3 प्लस x रेस टू, उल्टा करेंगे नहीं तो, x रेस टू 1 by 3 स्क्वायर plus x raised to 1 by 3 minus 2, 0. And this x raised to 1 by 3 is replaced by new variable. Say y square plus y minus 2 equals to 0. Verify. Try to understand the next step. Y square plus y minus 2 as a factor, y plus 2 into y minus 1 equals to 0. So value of y will be minus 2 or y will be plus 1. Now, what is y? Y is x cube. So x raised to 1 third of x cube, ne third root of x is plus 1. So when there is a third root, x raised to 1 by 3, take it's a cube. X raised to 1 by 3, 3 cancel. 3, x will be cube of -2 is -8. And cube of 1 is +1. So 1 comma -8 is its answer. Option was A, not B. Yes, Pranav. Kadam. Puri. अच्छा, ओके, महाड़ी। ऑप्शन ए, रिपीट। देखो ये तो समझ में आया, x raised to 1 by 3, ठीक है। लास्ट स्टेप, y is -2, y is +1, but what is y? Y is x raised to 1 by 3. So x raised to 1 by 3 is -2, 1 by 3. So x raised to 1 by 3. X raised to 1 by 3. 1 by 3 is -2. X raised to 1 by 3 is -2. So इसको हटाने के लिए 1 by 3 को, उसका क्यूब रूट है तो क्यूब लीजिए। सो ये हो जाएगा x क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ द साइड्स। तिसरा पावर घ्यायचा, थर्ड, -2 चा थर्ड पावर, -2 -2 -3 बार निगेटिव्ह -8.
Similarly, +1 का power. Yes, so this is our problem. Very interesting question. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस. ये जो है x⁻⁴, देखो x⁻²/3 मतलब x⁻⁴ और उसका स्क्वायर. ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए. x⁻² मतलब x⁻⁴. लॉज क्या बताता है? x⁻m⁴n इज x⁻mn. वही तो बता रहा हूं. फिर से देखिए x⁻m⁴n मतलब x⁻mn मतलब x⁻n⁴m. This is the laws of index, one of the law of index. Same thing applied here. x⁻²/3. It is same as here. Let me explain it. x⁻²/3 can be written as x⁻² 2 into 1/3, and which can be written as x⁻⁴ into 2, and which can be written as x⁻⁴². Laws of indices. And this was substituted as a new variable y, and the further proceed all of you know. Laws of indices. Okay. Try to understand the laws of indices. If you have any material, refer that material. You will understand the laws of indices. Indices plays very important role in solving the problems. Indices plays very important role in solving so many problems. Indices बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मददगार होता है. इंडाइसेस ये अल्जेब्रिक, जहाँ अल्जेब्रिक कैलकुलेशन है वही हमें इंडाइसेस का यूज होता है. लॉज ऑफ इंडाइसेस बहुत सारी जगह. इसमें और एक जगह इंडेक्स का यूज हुआ. x⁻⁴ was -2. देखिए और एक जगह यूज हुआ था. x⁻⁴ was -2. टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ द साइड्स. x⁻⁴ का जब हमने क्यूब लिया था, यस इजी है इसलिए हमने उसको शुरू में लिया नहीं है इंडाइसेस, लेकिन उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे इंडाइसेस के. मेरा एक्सप्लेनेशन है x⁻⁴ इज -2. अब x⁻⁴ का वैल्यू जब -2 होता है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो 1/3 को हटाना है. x⁻⁴ तो सिंपल बात है, x⁻⁴ को हमको थर्ड पावर करना है तो वो 3 हट जाता है. यानी टेकिंग क्यूब, nth रूट को हटाना है तो nth पावर लेना. तो हमने क्यूब लिया तो लेफ्ट साइड हो x, राइट साइड इज -2 क्यूब. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2 क्यूबिक? यस, क्यूबिंग बोथ द साइड्स. -2 क्यूब, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है. -2 -2 -2 3 times multiplication, you got -8. You got -8. So this was our problem on a different question. Very different question. Very different question. In some questions, the quadratic equation is already given, but in some questions, the equation is not given. You have to find the quadratic equation. हमें एक quadratic equation form करना होता है, and then we have to solve the quadratic equation. I have another problem. See here. Let us try whether it will be solved or not. It has real roots or not. Square root of 2 raised to x, देखिए problem, plus 1 upon square root of 2 raised to x equals to 2.
इसको हमें सॉल्व करना है, हम अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। x का एक वैल्यू 0 आता है, देखते ही पता चलता है 1 वैल्यू ऑफ x इज 0, इसका वैल्यू 0, 2 रेस टू 0 1 1, 2 रेस टू 0 1 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 2, x का एक वैल्यू आता है। बट हम कुछ ट्रिक्स लेके इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो है वैल्यू, इसी वैल्यू को हम y कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इज टू। लेस देन 1 लेंदी मिनट। प्रॉब्लम, हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात प्लीज rejoin all. नहीं। We have less than 1 minute. It has only one solution, x equals to 0 is its a solution. Y square minus 2y plus 1 has solution y